Hi, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Myself, Dr. Sujat Ahmed Mir, Senior Lecturer of Physics, Government Boys Higher Secondary School, Pampur. Now, today my topic is force and its relation with motion. This topic is important for class 9th as well as it's fairly good for class 11th. So, students, please give keen interest in this lecture. I hope you will enjoy it. And if you have any query, then you can just text me on my WhatsApp number 9797012346 and I will reply your queries there. Now let us start. Force and its relation with motion. Now to understand the force and its relation with motion, we need to go back in the history of science. That's I mean to say Aristotle era. Aristotle was one of the great philosopher of his own times. Okay, so he gave concept of the motion first. He discussed the motion. So his view have been challenged later on by very good scientists like I can say Copernicus, Galileo Galilei and so many others, but he has laid the foundation for the subject is called the mechanics, I mean the motion. So to understand it, let us go to his era and try to understand what is the base of this motion and how we can understand it, because most of the students is having a confusion in this particular section of their syllabus. So try to understand it. Now what was Aristotelian view? I will give the Aristotelian view. He has classified the motion. Later I will tell you what is motion, but first of all he is actually classified the motion in two categories. One category is natural motion and the second one is violent motion. Seems to be a very very awkward in saying this natural motion and violent motion, but we started with this in the science and you will understand it how important it is to us also. These were the two classification of the motion and as per the Aristotelian, ये natural motion हम किसको कहेंगे and violent motion हम किसको कहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ. मैं Aristotelian view दे रहा हूँ आपको. उसके हिसाब से जो object जिसमें एक inherent force लगेगा, I mean we have not given any force to that object, but yet it is moving, yet it has movement. Okay, so as per Aristotle, the motion carried by such an object is called the natural motion. Okay, for example, the motion of the celestial bodies, the motion of earth. Okay, so like that ऐसे objects में जिनमें हमने कोई force नहीं दिया, but force is there as an inherent property. As per the Aristotle, that motion is called the natural motion. But see, look here, as per his violent motion is considered. As per the violent motion is that, as per the Aristotelian view, the violent motion is that where we impose force. So here imposition of force is important. In natural motion there was no importance of imposition of force because imposition of force was considered not there, but inherent force. Here in violent motion we considering what? The imposed force. Okay, so that's why it's called the violent motion. See, for example, if there would have been a flood, under the flood situation many of the boulders are moving because of that flooding water. तो ये जो motion उस boulder में आए ना, it's called the violent motion because the force has been imposed on that boulder. Got it? Very good. So similarly, अगर branches of the trees हिल रहे हैं ना wind की वजह से, अगर वो हिल रहे हैं तो वो wind की वजह से हिल रहे हैं, तो हमने उसको impose force किया. Fine, you got? तो ऐसी motion of branch जो tree branch of a tree है उसको Aristotle ने बोला था violent motion. We started with this and now understand what is the relation. This is the topic in class, directly in class 9 syllabus, force and its relation with the motion. Now you got it? मैं nutshell में बोलता हूँ. Nutshell में जब Aristotle व्यू देखेंगे मोशन का तो उसका मोशन का मतलब ये है मूवमेंट. क्या मतलब है? मूवमेंट. मूवमेंट किसकी? मूवमेंट ऑन ऑब्जेक्ट. अगर मूवमेंट ऑब्जेक्ट में होगी देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. वो अलग बात है, उसने दो किस्में मोशन के बोले थे, नेचुरल और वायलेंट. बट the in nutshell the definition of motion as per the Aristotle is movement of an object. I mean in other words the change in the position of an object. Okay, और हम बोल सकते हैं
change in position of an object. Okay, हम ऐसे बोल सकते हैं this was the Aristotelian view of motion. So अगर किसी चीज में मूवमेंट होगी, अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करे, ऐसे में हम बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है ना, एज पर अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटेलियन व्यू, ठीक है. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोशन एज आई सेड, ओके, नेचुरल एंड वायलेंट मोशन. लेटर ऑन दिस इज समहाउ मॉडिफाइड बाय द गैलीलियो गैलीली. गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, उसने बताया कि ये जो मोशन है ये नहीं है मूवमेंट, ओनली पोजीशन. उसने बोला टाइम फैक्टर इज मिसिंग, यानी मोशन की जब आप बात कर रहे हो एज पर द गैलीलियो, ठीक है, एज पर द गैलीलियो जो ये है मैं आपको बता रहा हूं, एज पर द गैलीलियो जो टाइम फैक्टर है वो मिसिंग है. मतलब क्या है, तो you understand it. This was the crux of the whole thing, but I am actually trying to make you understand. मामला ये है कि जो एरिस्टोटल ने बोला था that change in position यानी movement of an object is motion, but that has been modified by the Galileo. What Galileo make a modification? मैं वो modification आपको बोल रहा हूं. The modification is, he said, the Aristotelian has missing the time factor there. यानी हमें बोलना चाहिए इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. दिस इज द गैलीलियोस मोशन. गॉट इट नाउ. जहां पर भी मूवमेंट इन्वॉल्व होगी यानी जहां पर भी चेंज इन पोजीशन इन्वॉल्व होगी बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द मोशन. अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोला, दैट इज द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ मोशन. बट अगर आपने विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिया जो कि करेक्ट भी है, that's the Galileo view of motion. So अगर हम इस पे आ जाएं मॉडिफाइड पे, हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. बताइए जनाब, अगर किसी चीज में चेंज इन पोजीशन में रब कर रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको. अब एरिस्टोटेलियन व्यू हमने समझी, अब गैलीलियो व्यू हमने समझी. क्योंकि गैलीलियन व्यू इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड व्यू, अब यही रहेगा हमें, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. डियर स्टूडेंट्स, whenever there is change in position with respect to time, this is false. Change in distance with respect to time, a change in displacement with respect to time. Okay, that is the with respect to time. When you traverse, when you traverse some distance or when you traverse some displacement and you are measuring the things with respect to time, do you know what about you are speaking? अगर distance versus time लिया तो आप speed के बारे में बोल रहे हो. अगर displacement versus time लिया तो आप velocity के बारे में बोल रहे हो. और अगर आपने velocity को with respect to time लिया तो आप acceleration के बारे में बोल रहे हो. तो ये फाउंडेशन है. सो सबसे बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी आपको मेजर करने में लगी मोशन में वो है स्पीड, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, और हम लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ मोशन. जो फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ये है, कौन सा वाला, पहला स्पीड. जानते हो क्यों? बिकॉज स्पीड जो है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम. सबको शायद पता होगा दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस पर टाइम. ओके, सेकेंड वन वेलोसिटी. वेलोसिटी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सी, आई हैव टेकन द थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, समझ में आई? और द थर्ड व्यू इज, the third is acceleration. Okay, acceleration. And what is acceleration? It is velocity over time. Okay, it is velocity over time. And we can go on and carry on with the rest of the times. Okay, understood? So ये मैं बोल रहा हूँ, these are the basic. The basic quantity to know the motion, regarding the motion, is the speed, and then velocity, and then acceleration. But many a times we are also considering the displacement and displacement, distance and displacement. But that is the Aristotelian view. But Galileo view से हम यहाँ से शुरू करते हैं, speed, velocity, acceleration. So motion is not something concentrated on a particular definition. Motion involves all those things where there is a change in position but with respect to time. तो यहाँ से शुरू होगा, फिर आगे आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा.
से जैसे मैं आपको फोर्थ बताऊंगा, फोर्थ है जिसको हम जर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्क, दैट इज एक्सेलरेशन पर टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन पर टाइम। ऐसे ही आप आगे आगे जाओ, आप अगर फिफ्थ लिखोगे, ठीक है ना, तो आप लिखोगे स्नैप, ठीक है, तो स्नैप जो है दैट इज जर्क बाय टाइम, जर्क बाय टाइम। Okay, you can carry on. There is so much option, and after that you can have another thing. से jerk के बाद आप जैसे मैंने आपको बताया आप बोल सकते हो many more terms. Okay, then see, look here. Distance you taken with the time is speed, is the basic fundamental quantity which is required to discuss the motion, and then velocity, that is displacement over time, and that's acceleration and velocity over time. Jerk, that's acceleration over time, and snap, that is jerk over time. मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। सो यू नो मुझे सब में क्या बोलना है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द मोशन। मैं अभी दे रहा हूँ फोर्स एंड मोशन के बीच में रिलेशनशिप। देखिए आप, अब आगे चलते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि ये चीजें बड़ी फंडामेंटल है किसमें, एक मोशन को एक्सप्लेन करने में। अब देखिए एरिस्टोटल व्यू, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट इज द मोशन? मोशन इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये फाउंडेशन है, उसके बाद आप आगे कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, jerk, okay, and many more things. Now, अब ये है कि फोर्स के साथ कौन सी रिलेशनशिप है और कैसे है। अगर मैं फोर्स की सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूं, फोर्स की, ओके, इट इज पुश आर पुल। ये पुश आर पुल बोला जाता है, और इस पुश आर पुल की जो सोर्स है, यानी जो सोर्स होता है, या तो ग्रेविटेशन है, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, या इसकी सोर्स है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक, या इसकी सोर्स इलास्टिक हो सकती है, एंड मेनी मोर। ये सारे इसके सोर्सेज हो सकते हैं, ये इसके सोर्स है। यानी मैं बोल रहा हूं फोर्स इन सिंपल टर्म्स इज पुश आर पुल। दिस पुल आर पुश कैन जनरेटेड फ्रॉम ग्रेविटेशन, इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड, और इट कैन बी इवन एस्टैब्लिश्ड बाय मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म और इलास्टिक। ओके, एनीवेज मैं आपको ये बता रहा हूं कि मतलब ये जो है पुश आर पुल है। आप देखिए, जाइए एरिस्टोटल व्यू पे वापस, उसने क्या बोला, नेचुरल मोशन, वायलेंट मोशन। नेचुरल मोशन में कोई आपको वहां पर फोर्स नहीं देना है, ऐसे इंपोज नहीं करना, इट इज इनहेरेंट। बट इन वायलेंट मोशन यू हैव टू इंपोज द फोर्स। दैट मीन्स if you apply the force, then only it will attain some speed. Then only if direction is considered, it will attain velocity. If velocity is taken with respect to time, it will attain the acceleration. And if that acceleration is taken with respect to time, then it becomes a jerk. So many more things. So मुझे ये बोलना है यहाँ पर सिर्फ ये चीजें मोशन की स्पीड वगैरह तभी पॉसिबल है when you impose the force. समझ में आई बात? तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे में what is the relationship? Do you know that? बोला गया है कि जितना आप बॉडी को एक्सेलरेट करोगे, ठीक है ना, उतना उसके पास, यानी जितना आप एक इंपोज करोगे फोर्स एरिस्टोटल व्यू से, उतना बॉडी में एक्सेलरेशन बढ़ेगी, ये बोला गया है, ठीक है ना। जितना आप फोर्स ज्यादा दोगे उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। यू नो एक्सेलरेशन इज वेरी वेल ए क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द मोशन। तो ये मोशन है, ये फोर्स है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन is representing the force, right hand side of this equation is representing the acceleration. That is actually a motion because part of the motion. Okay, got it? Now then further it has been found that when you actually convert direction proportionality into equality, here comes a constant, that's mass of an object. So F is equal to ma. This is the established relationship between force and the motion, and many more. This one is considered the fundamental one. Okay, got it? So समझ गए आप? तो मैंने पहले बताया मोशन क्या होती है, जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस होगी, यानी चेंज इन पोजीशन होगी, हम बोलेंगे मोशन है। बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो वो गैलीलियन व्यू है, ठीक है। और सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मोशन है स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर जर्क, फिर उसके आगे हम जाएंगे स्नैप, फाइन। तो फिर हम बहुत और जा सकते हैं, इवन हम पोप पे भी जा सकते हैं। बट हियर साइंटिस्ट हैव ए कॉन्सेंसस कि हम एक्सेलरेशन तक ही इसको डिस्कस किया करेंगे, वहीं से हम चीजें को स्टॉप करेंगे, बाकी चीजें उसके साथ रिलेट करेंगे। इसीलिए मैंने वही एक्सेलरेशन लिया। तो साइंस जो हमने एनालाइज किया, साइंस में जितना फोर्स दोगे किसी बॉडी में उतना वो एक्सेलरेट ज्यादा करेगी, और अगर आप डायरेक्शन प्रोपोर्शन हटाओगे तो मैस आ जाएगा। दिस F इज इक्वल टू ma. दिस इज द एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द मोशन। सिंपल
here acceleration, but acceleration is a part of motion. Got it? Okay, so let us move further. अब ये जो है, जो हमने रिलेशनशिप ली, जो हमने फोर्स किया, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द मोशन, वो हमने लिया F इज इक्वल टू ma, वो हमने ये लिया. अब हमें बोलना है कि ये कौन सा फोर्स है, ये बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है ना, कि ये मैं अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा हूं. ये अब क्वेश्चन मार्क है, इज इट ए बैलेंस्ड फोर्स और इज इट इम्बैलेंस्ड फोर्स, ये बोलना है. ये जो इक्वेशन है, बाय द वे दिस इक्वेशन इज द न्यूटन सेकंड लॉ, बट हियर F इज इक्वल टू ma, हमें ये बोलना है कि बैलेंस्ड है ये फोर्स कि अनबैलेंस्ड है. देखिए जनाब, अगर आप कहीं जगह ग्राउंड में खड़े हो लाइक दिस, और ये ग्राउंड है, आप खड़े हो यहां पर, आपके दो फोर्स आ जाएगा. एक आपका वेट आ जाएगा, वेट इज नथिंग बट इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विच इज गिवन एज m into g, mass into acceleration due to gravity. g small g is acceleration due to gravity. बट यहां इसके अपोजिट में रिएक्शन आ जाएगी, दैट इज r. और ये w जो है ना, ये वेट है, उसके नॉर्मल टू द सरफेस, ये ग्राउंड है यहां पर, दिस इज ग्राउंड, और नॉर्मल टू दिस ग्राउंड इज द रिएक्शन. और ये रिएक्शन और वेट बराबर है. बताइए टोटल फोर्स कितना होगा यहां पर, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स यहां पर हुआ r प्लस w, चूंकि सिंस ये w एंड r बराबर हैं, देयरफॉर टोटल फोर्स जो होगा, जो टोटल फोर्स यानी मैं इसको FR लिखूंगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा W, यानी R के बदले हम फिर भी लिखेंगे W, देन प्लस W. अब मसला यहां पर है, अब मसला ये है, क्योंकि W डाउनवर्ड्स है, R अपवर्ड्स है, तो इसलिए मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू माइनस R. तो मैं यहां पर लिखूंगा, यानी माइनस W मैं ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू ऐसे करेंगे, R के बदले R ही लिखेंगे, W के बदले माइनस R लिखेंगे, तो ये कट हो जाएगा. सो योर रिजल्टेंट फोर्स कम्स आउट टू बी 0. ओके, सो मतलब मुझे ये बोलना है कि जो हमें फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो फोर्स हमें खींच रहा है, ग्राउंड हमें रिएक्शन दे रहा है, ये दोनों बराबर है, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो 0 बनता है नेट फोर्स. यानी दीज टू फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस, यानी जो वेट है और जो रिएक्शन है, दीज आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस. सिमिलरली अगर आप टग ऑफ वार खेल रहे हो, टग ऑफ वार खेल रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, और 500 न्यूटन का फोर्स वो भी दे रहा है, ठीक है ना, आप इस साइड में दे रहे हो 500 न्यूटन, वो 500 न्यूटन इस साइड में दे रहा है, लाइक दिस. फाइन, तो क्या होगा, जितना फोर्स आप यहां से लगा रहे हो उतना फोर्स वो आपका फ्रेंड वहां से लगा रहा है. व्हाट इज द नेट फोर्स? 0. दीज फोर्सेस आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, गॉट इट. सो इन केस में बोल रहा हूं, सपोज अगर जो मैं यहां पर बोल रहा हूं रिएक्शन बड़ी होगी वेट से, या इस मामले में, हमारे मामले में, तो हम हवा में उड़ जाएंगे, बिकॉज रिएक्शन जब ज्यादा होगा, वहां पर कुछ पार्ट जब मैं माइनस करूंगा यहां पर, तो कुछ पार्ट रिएक्शन का बचेगा, तो दैट मीन्स एक फोर्स लगेगा जो थोड़ा सा लगेगा, वो ऊपर साइड में लगेगा, तो हम हवा में उड़ेंगे. फाइन, बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें सपोज वेट ही ज्यादा होगा रिएक्शन से, तो जब दोनों को माइनस करेंगे, सिंस वेट इज ग्रेटर देन द रिएक्शन, सो देयर रिमेन्स ए पार्ट ऑफ द फोर्स, बिकॉज वो बैलेंस नहीं हो रहे ना, तो कुछ बचेगा, दैट मीन्स हम ग्राउंड में ही रह जाएंगे. तो ऐसे में उन फोर्सेस को उस वक्त बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, समझ में आई? तो बैलेंस फोर्स वो होता है that actually gives the resultant 0, but unbalanced forces are those forces where resultant is not 0. Okay, there is some finite value, so उनको बोलते हैं unbalanced forces. और कुछ टर्म्स में, कुछ बुक्स में you will also find the net force, you will also find the name resultant force. Unbalanced force, net force, resultant force, it is one of the same thing. और जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स, this is unbalanced force. चलिए ये खत्म हो गया. This is unbalanced force means net force. So here in this equation, which is the relation between force and the motion, there F is unbalanced force, I mean the net force. Okay, if you will give this net force to anybody, only then it will accelerate, otherwise it will never accelerate. जब आप एक कार्ट को यहां से पुल करोगे, कार्ट होगी कोई, पुश करोगे उसको, अगर आप उसको पुश करोगे, ओके, what will happen? That means वहां से रेजिस्टेंस आ जाएगी, किसकी? फ्रिक्शन की वजह से, और आप यहां से दे रहे हो, क्योंकि अगर आपका पुश उसके ऊपर ज्यादा होगा, तो वहां पर अनबैलेंसिंग ऑफ द फोर्स हो जाएगी, वहां पर नेट फोर्स रहेगा.
एंड वो नेट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दैट कार्ट। और फिर कितना होगा फोर्स, इतना होगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, यहां से पता चल जाएगा F by m इज इक्वल टू ए, एम को यहां लाएंगे ए निकलेगा, सीधे हम बोल सकते हैं, यानी उस वक्त हम बोल सकते हैं F by m इज इक्वल टू ए। तो देखेंगे कितना फोर्स दिया, कितना मैस है उस कार्ट का, सीधे ही पता चलेगा एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी। लेकिन कौन सा फोर्स, वंस अगेन नेट फोर्स। बैलेंसिंग फोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्सेलरेट करेगी बॉडी सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स और नेट फोर्स। अंडरस्टैंड? ओके, देखिए आप आगे ये है, अगर आपके पास दो चीजें हैं, इनर्शिया क्या होता है? ओके, इनर्शिया किसको बोलते हैं? एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर से आप एक ऑब्जेक्ट है, ये है, ओके, इसका मास m है, आप ना इसको फोर्स दे रहे हो ऐसे ताकि ये आगे जाए। ओके, तो ये जब आगे जाएगा सपोज, तो आपको बोलना है कि ये है कि ये किस एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर इससे छोटा ऑब्जेक्ट देंगे उसके ऊपर भी ये फोर्स देंगे, ठीक है। इसका हम ऐसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैपिटल M और इसको स्मॉल m, इसके ऊपर फोर्स, ठीक है। और इसमें जो एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी वजह से वो कैपिटल A, और इसको जो एक्सेलरेशन आएगी वो स्मॉल a। फाइन। अब बताइए, सीधी सी बात है, बताइए जब आप इसको सेम फोर्स दोगे बड़े ऑब्जेक्ट को जिसका मास कैपिटल M है, छोटे ऑब्जेक्ट को भी दोगे जिसका मास स्मॉल m है, तो बताइए कौन पहले मूव करेगा? जिसके पास बड़ा m है कि जिसके पास छोटा m है? जिसके पास मास ज्यादा है, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। आप समझ गए ना बात? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये रेजिस्ट कर रहा है अपने स्टेट को चेंज करने में। सो टू ब्लॉक्स जो मैंने यहां लिए, एक का कैपिटल M, एक का स्मॉल m, दे आर एट रेस्ट। और जब हम इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पुश करने से या पुल करने की कोशिश करें, दो में से एक चीज, तो उससे क्या होगा? ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, रेजिस्ट करता है। एंड सच ए रेजिस्टेंस इन मैकेनिक्स कॉल्ड द इनर्शिया। So what is an inertia? If somebody will ask you, inertia is that property of a substance due to which it resists to change the state. On this state, if it will be in rest, it resists to change its state to get from rest to the motion. Or if it is in the motion, then it even resists to change its state of motion into the state of rest. अगर ये चेंज नहीं करना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। ओके, अब इनर्शिया किस में ज्यादा है? हमने देखा जिसमें मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा है, जिसमें मास कम है उसमें इनर्शिया कम है। तो हमने देखा कि इनर्शिया और मास एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास, मोर द मास तो मोर द इनर्शिया। और हम ऐसे बोल सकते हैं मोर द क्वांटिटी ऑफ मैटर, बिकॉज मास मींस क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोर द इनर्शिया। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस है। बच्चों सुन लीजिए मेरी बात, आप शायद इसको अंडरस्टैंड ऐसे कर पाओगे। जब हम कोई ना कुर्बानी का बकरा लेते हैं ईद में, तो हम क्या करते हैं, उसको उठाते हैं फिर ऐसे ऐसे करते हैं ताकि हम गेस करेंगे इसका जो मास है कितना होगा। ठीक है, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम वहां पर यही चीज तो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जब उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बेड को जो हम लेंगे वहां पर, ओके, शीप लेंगे, कौन सा लेंगे, गोट लेंगे, जो हम उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेस्ट में होगा। हम उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब रेस्ट से मोशन में वो उसका इनर्शिया होगा ना। वो इनर्शिया वो नहीं चाहेगा मैं रेस्ट से मोशन में आ जाऊं, बिकॉज इनर्शिया चाहता है कि वो अपना स्टेट मेंटेन रखे, लेकिन हम कराते हैं। तो जितना वो रेजिस्ट ज्यादा करेगा उसको स्टेट चेंज करने में उतना दैट मींस उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। और जितना इनर्शिया ज्यादा होगा उसका इनडायरेक्टली मतलब है उसके पास मास ज्यादा है। और हम सीधे बोलते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा, मतलब उसका मास ज्यादा है कि कम होता है। दैट मींस वी गेस लाइक दिस। ओके, तो इनर्शिया पता से चलता है मास क्या है। मैं आप स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, छोटे छोटे स्टूडेंट जो हम सुन रहे हैं हमें, मैं उनको बोल रहा हूं, अब ऐसे में ऐसा करते हैं हम, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि मास और वेट के बीच में मैक्सिमम टाइम्स कंफ्यूजन होता है। वो लोग ना मास को ही वेट बोलते हैं समटाइम्स, बट कंफ्यूजन इज देयर ए वैलिड वन, बिकॉज लेमैन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में लेमैन को ये कंफ्यूजन क्यों होता है, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है। वेट जो है दैट्स m into g. This acceleration due to gravity on the surface of earth is constant, so we took this is proportional to mass, और mass is proportional to weight. अगर mass दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का mass 2 times हो जाएगा तो weight भी 2 times increase हो जाएगा। If the mass increases by 3 times, the weight also increases 3 times because they are proportional to each other. Got it? तो वो proportional है।
सो अगर mass 4 times इंक्रीज हुआ तो सेम इज द फेट विद वेट, तो वेट भी इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसीलिए लोगों को mass और वेट के बीच में कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूजन से उनके बिजनेस पे ज्यादा असर नहीं आता है, बिकॉज उनको पता है जितना अगर mass इंक्रीज हुआ तो जितने टाइम्स वो हो जाएगा उतने टाइम्स वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। और सेम मैस और वॉल्यूम के बीच में लेमैन को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहां भी यही प्रॉब्लम है कि जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू मैस है। आप समझ गए ना बात, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम। अगर सपोज 1 kg ऑफ राइस आपने किसी बैग में रखा, उसने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो अगर आपने 2 kg ऑफ राइस रखे तो दुगना वॉल्यूम हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन मैस इज द वॉल्यूम। बट उसको पता है, उस जनाब को जो उसके साथ कर रहा है, कि अगर मैं मैस को इंक्रीज कर रहा हूं ना तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। अगर मैं मैस को 2 टाइम्स इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं मैस 3 टाइम्स इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम इंक्रीज 3 टाइम्स करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वॉल्यूम के साथ इसको डायरेक्टली रिलेशन है, इनडायरेक्ट है, बट उनको तो उनका जो एक्चुअली मकसद होता है ना वो पूरा हो जाता है, क्योंकि एम होती है। सो दैट्स वाई हम उनको लेमन में वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन दे आर नॉट सेम। जैसे स्वीटनेस है, जितने केजी आप बढ़ाओगे शुगर का ना तो स्वीटनेस नहीं बढ़ेगी ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्वीटनेस नहीं बढ़ेगी। तो लाइक दैट मैस जो है इट्स प्रोपोर्शनल बट नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम। गॉट इट? तो ये कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, तो मैंने आज आपको बताया वो कंफ्यूजन क्यों होता है, इसलिए होता है। अब चलिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज इनर्शिया। ओके, ये इनर्शिया मैं फिर से बता रहा हूं आपको। सो इनर्शिया इज नथिंग बट व्हाट इनर्शिया रिप्रेजेंट्स इन मैकेनिक्स रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में अपोजिशन दिखाती है, मैकेनिक्स में इनर्शिया अपोजिशन, लेकिन किसको? मोशन को। तो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मैस को। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैस को। जितना मैस उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना मैस कम उतना इनर्शिया कम। सो हम बोल सकते हैं इनर्शिया is actually proportional to the mass, more the mass, more the inertia, less the mass, less the inertia. Got it? So मैंने क्या पढ़ाया अभी तक आपको? मैंने पढ़ाया what is the relationship between force and motion. मैंने आपको पढ़ाया अभी तक what is the balanced and unbalanced forces. मैंने अभी तक आपको बताया कि what is inertia. So मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि मैं क्लोज कर रहा हूं इस लेक्चर को, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहां मैंने क्या पढ़ाया अभी तक? फर्स्ट फिर से रिपीट करता हूं, पहले मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया क्या? What is the relationship between force and the motion? Okay, got it. Aristotle UBD, Galileo UBD, got it. उसके बाद मैंने बताया कि सबसे बेसिक फाउंडेशनल क्वांटिटी जो है मोशन को वो स्पीड है, उसके बाद वेलोसिटी अगर डायरेक्शन दे दी, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन पे बात की, उसके बाद जर्क पे बात की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन वी वेंट टू द इनर्शिया या बैलेंस, सॉरी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और मैंने क्या बोला? बैलेंस्ड फोर्सेस, जहां पर रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा ना तो उन फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड। सपोज वेरियस फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट but the resultant force is zero, those forces are called the balanced forces. लेकिन अगर उनका रिजल्टेंट फाइनाइट रहा, यानी फाइनाइट ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, एक्सेप्ट जीरो में बोल रहा हूं, तब जाके हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स। एक्सेलरेशन इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन एंड फोर्स जो है वो है इसके बीच में रिलेशन, और मैंने वो दी F इज इक्वल टू ma। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स था, राइट हैंड साइड एक्सेलरेशन। Acceleration is the witness of motion, and here F is the force. It's a good relation between force and acceleration. By the way, it's the Newton's second law. And the rest of the things I will discuss in the next lecture. Stay tuned with me and wait for the next lecture. Thank you very much, my dear students. Hi friends, this is Bashir Ahmed Kojri, and this time with a lecture on political parties. Dear students, this chapter political parties is mentioned in the social science civics book of class 10th. और ध्यान रहे बेटा, ध्यान देना, सुनिए। Every time we go to the news channels, जब भी हम न्यूज चैनल्स देखते हैं, क्या हम देखते हैं? हम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र सुनते हैं, हम अमित शाह का नाम सुनते हैं, हम उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक का नाम सुनते हैं, हम महबूबा मुफ्ती का नाम सुनते हैं, हम पाकिस्तान के इमरान खान का नाम सुनते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते हैं। वेल, जितने भी जो ये लीडर्स हैं, हु आर दे आर
the leaders of what are known as political parties. Yes, ये political parties के leaders है. जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, he belongs to the political party जिसका नाम यूजुअली हम सुनते आए हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. हमारी बुक में भी मेंशन है भारतीय जनता पार्टी का नाम. और इसके अपोजिशन में जो हमारा इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा, तो ही ऑल्सो बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस. और स्टेट पार्टीज का नाम आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम हमने सुना है, हमने स्टेट में नाम सुना है पीडीपी का. So these are political parties. So some of the political parties who were active in last election in Jammu and Kashmir included BJP, Indian National Congress, National Conference, PDP and so on. तो ध्यान रहे बेटा. अब क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? नाम तो हमने दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में हम क्या क्या बोल सकते हैं? ध्यान रहे, बीजेपी का नाम देखते हैं तो पहले एक लीडर है, कुछ मेंबर्स है, ए ग्रुप ऑफ द मेंबर्स हु कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कॉन्टेस्टिंग एंड इन द इलेक्शन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं अंडर वन सिंबल. ध्यान देना, ग्रुप ऑफ पीपल, पहले ग्रुप ऑफ द पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस करते हैं, इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं अंडर सिंगल सिंबल, सिंगल इनकी इलेक्शन सिंबल होती है, इनका एक ही सिंगल मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो होता है. और एक और चीज, दे शेयर द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. दैट मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल contesting in elections with single election symbol, single manifesto, single leadership and same sharing same policies and programs for the welfare of the people. Such a group of the people constitutes a political party. ऐसा ग्रुप बनाता है एक पॉलिटिकल पार्टी. तो हो गया. तो पहला क्वेश्चन जो that was asked to us, define political party, जो हमारी बुक हमसे पूछती है what is a political party, तो हमने इसका याद रखा, ग्रुप ऑफ द पीपल contesting elections, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं अंडर सिंगल इलेक्शन सिंबल, सिंगल इलेक्शन मैनिफेस्टो, शेयरिंग सेम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दैट्स अ पॉलिटिकल पार्टी. और पॉलिटिकल पार्टी में एक और चीज हम देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स. पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स है एज पर आवर बुक. पहला है लीडर्स, इसके लीडर होते हैं. लीडर के बाद दूसरा कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स. एंड तीसरा इस क्या है? फॉलोअर्स. सो द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी आर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स हो गए 2 एंड फॉलोअर्स हो गया 3. सो पॉलिटिकल पार्टी अब क्यों बनती है? पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है, व्हाई इट इज फॉर्म्ड, ये क्यों बनती है? ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टी बनती है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. टू कॉन्टेस्ट, जब भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है किस लिए? ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले,
टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। और इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों करें? टू विन इट। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे एंड टू विन इलेक्शंस। इलेक्शन जीता तो क्या करती है? टू फॉर्म गवर्नमेंट। टू फॉर्म गवर्नमेंट। जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और जो ये गवर्नमेंट बनाती है दैट रन इज द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को फिर चलाती भी है। रन इज द गवर्नमेंट। आया? पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हम इलेक्शन जीते, इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन जीते, गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट को चलाए एज पर ओवर इंटरेस्ट, एज पर ओवर व्यूज। हमारी व्यूज में जो लोगों के लिए ठीक रहेगा उन्हीं पॉलिसीज को हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फॉर दैट पर्पस एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। और नेक्स्ट है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है। जनरल में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी नेचुरली जब भी इस इलेक्शन में लेगी, एक जीतेगी, और अगर एक पार्टी ने इलेक्शन जीता, देयर विल बी अदर पार्टीज हु विल बी एट द लूजिंग साइड, जिन्होंने जीता नहीं है। तो जनरल में हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहली फंक्शन हम यहां मेंशन कर लेंगे, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कॉन्टेस्ट इलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पॉलिटिकल पार्टी का काम है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, जो पार्टी जीतती है, द विनिंग पार्टी, जो विनिंग पार्टी है, पार्टी जो है दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वो बनाती है गवर्नमेंट, एंड रन इज द गवर्नमेंट, रन इज द गवर्नमेंट। उसके बाद जो दोज पार्टीज विच आर एट द लूजिंग साइड, जो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, दे फॉर्म वो बनाते हैं अपोजिशन। और अपोजिशन का भी एक काम होता है, अपोजिशन क्रिटिसाइजेस द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जब हुकूमत चलाती है, जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेके वो आती है, उसको क्रिटिसाइज करना, उसके नेगेटिव चीजें जो उसमें है वो लोगों तक पहुंचाना, ये अपोजिशन का काम है। इससे क्या होता है? अपोजिशन पार्टी चेक्स द रूलिंग पार्टी फ्रॉम बीइंग डेस्पोटिक। इससे रूलिंग पार्टी डेस्पोटिक नहीं बनती है। रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना चलाए, इसीलिए अपोजिशन हर बार रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसी है उसकी नेगेटिव चीजें जो होती है, उसमें नेगेटिव चीजें जो होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग इन नेगेटिव चीजों को देख के नेक्स्ट इलेक्शन में खुद डिसाइड कर पाए अच्छी तरह कि टू विच पार्टी दे शुड वोट। तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या है? टू क्रिटिसाइज द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब जो ये रूलिंग पार्टी जो है दैट फ्रेम्स, वो बनाती है पॉलिसीज, दैट फ्रेम्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर जो बनता है, देखो जो भी लेजिस्लेशन आती है, पॉलिसीज आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, गवर्नमेंट डिसीजन आते हैं, वो डिसीजन हु टेक इज द डिसीजन, who executes the decision? It is the political party. So legislations, to make the legislations, to execute the legislations, ये काम भी political party का ही है। और एक चीज है कि political party जो है, they mold public opinion, they mold public opinion about different issues. तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? ध्यान रहे, मेन फंक्शन में पहले हमने कहा टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। दूसरा क्या है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन के बाद सेकंड काम है द विनिंग पार्टी हैज द फंक्शन, उसकी एक फंक्शन है टू मेक द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, टू फ्रेम द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स,
डिसीजन मेकिंग में इनका खास ये हाथ रहता है। उसके बाद जो पार्टी जीतती नहीं है, दैट मेक्स अपोजिशन, और अपोजिशन का काम क्या है, टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी, टू क्रिटिसाइज द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। इससे रूलिंग पार्टी थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है, वो उतना ऐसा कुछ नहीं कर पाती है कि जिससे आम जनता को नुकसान हो। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद जो हमारी बुक में नेक्स्ट सब टॉपिक है, तो वो है व्हाट आर द चैलेंजेस। इंडिया में क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द challenges faced by political parties, faced by political parties। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, आप खुद अपने आप से पूछिए। जब से हमने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, जो कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी रही है राइट फ्रॉम 1947, तो यूजुअली जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, या तो हम शेख अब्दुल्ला जो इन कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, या उसके बाद हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, या उसके बाद उमर अब्दुल्ला। लीजिए पीडीपी की बात, वहां भी हमने नाम सुना है मुफ्ती सईद का ज्यादा, और उसके बाद उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती का। अब आइए आप कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम आता है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी। तो एक और चीज दिखती है, इन बातों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, इट इज नॉट द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हो, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जो लीडर चाहे वो रिटायर पार्टी से हो जाए या चाहे उसकी डेथ हो, तो उसके बाद क्या होता है, यूजुअली उसी का बेटा इसकी जगह लेता है। अब इसका बेटा भी, जब उसका भी टाइम कंप्लीट होता है, उसके बाद उसका बेटा आता है। दैट मीन्स एक ही खानदान, पूरी पार्टी को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव गेट हाईजैक्ड बाय सिंगल डायनास्टीज। तो इसको हम कहते हैं कि डायनास्टिक सक्सेशन जो है, इट इज ए चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज। देखो चैलेंज क्या है, सपोज यहां एक रूलर रहा या एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर रहा, जब इसका टाइम हो जाता है तो इसी का सन आता है, वो फिर पार्टी का लीडर बनता है। इसका टाइम होता है, फिर इसका सन। इससे क्या होता है कि अगर इसके पास कुछ एबल मिनिस्टर्स भी होते हैं, एबल मिनिस्टर्स, अगर एबल मिनिस्टर्स भी होते हैं, दे डू नॉट गेट ए चांस, उनके पास उनको एक चांस नहीं मिलता है कि वो भी इस गद्दी को संभाले। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। और ये पूरे विश्व की बात अगर देखते, पूरे वर्ल्ड में ये एक चैलेंज आता है। तो पहला चैलेंज हमने जो लिखा, दैट इज डायनास्टिक, जो डायनास्टिक सक्सेशन होती है, दिस इज वन चैलेंज। दूसरा चैलेंज आप देखिए, बीजेपी की बात जब आज हम सुनते हैं तो कुछ ही गिने चुने लीडर्स का नाम सुनते हैं। एनसी का नाम सुनते हैं तो गिने चुने लीडर्स, किसी भी पार्टी का थ्रू वर्ल्ड जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है तो मीडिया में भी गिने चुने लीडर्स उस पार्टी के आते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग विद इन द पार्टी है, कहीं ना कहीं जो विद इन द पार्टी पावर है, दैट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ईदर वन पर्सन और ए फ्यू पीपल। या तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो पावर्स है, जो अथॉरिटी है, या तो वो एक बंदे के पास है या कुछ गिने चुने लोगों के पास है। और बाकी पार्टी के मेंबर्स क्या होते हैं,
नो डाउट दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, दे आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में यूजुअली उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है। और जब एक ही पार्टी हो, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन इन तीनों ने सपोज डिसीजन लिया और इनको कंसल्ट किया ही नहीं, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यस, चांसेस है कि एक स्पेस क्रिएट होती है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। दैट मीन्स जो ये लैक ऑफ, वी कैन से विद इन द पार्टी इक्वालिटी नहीं है, वी कैन से देयर इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो दूसरा चैलेंज जो है दैट इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। ये एक चैलेंज है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब डिसीजन कुछ ही लोग लेते हैं, बाकी लीडर्स और इनके बीच में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो दिस इज वन सेकेंड चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। और एक चैलेंज हमें दिखता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, यूजुअली कौन लोग इलेक्शन जीतते हैं? हम बहुत ही कम सुनते हैं कि कोई गरीब लीडर निकला, इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये जीत पाता है। अगर होगा भी कहीं तो बहुत कम। यूजुअली इलेक्शन कौन से लीडर जीतते हैं? जो अमीर हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास मनी पावर हो, मसल पावर हो। दैट मीन्स मनी एंड मसल पावर दे प्ले करते हैं वन ऑफ द वाइटल रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, थ्रू द वर्ल्ड। यूजुअली जब भी इलेक्शन होते हैं तो जीता कौन है? वो कैंडिडेट जिसके पास पैसा हो एंड मसल पावर हो। और ये पैसा और मसल पावर यूजुअली ड्यूरिंग इलेक्शंस हमें दिखता है। तो वी कैन से दैट मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर, दिस इज वन मोर चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। और एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, आप देखिए हाउ मच वुमेन पार्टिसिपेशन। अगर हम जानते हैं कि इंडिया का जो सेक्स रेशो है, ओवरऑल एवरेज सेक्स रेशो इज दैट्स ऑलमोस्ट फेवरेबल, तो पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखते हैं तो अराउंड उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नो डाउट वुमेन थोड़ी सी कम है कंपेयर टू मैन, बट टोटल में अगर जनरली हम देखते हैं जितने मैन उतने वुमेन। लेकिन इलेक्शन में होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हाल है कि ज्यादा लीडर्स मेल होते हैं, फीमेल बहुत कम होते हैं। दैट मीन्स दिस अनइक्वल पार्टिसिपेशन या अनइक्वल मेंबरशिप बिटवीन ऑफ वुमेन एंड मेन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी, ये भी एक चैलेंज है। सो एक और चैलेंज हमने यहां मेंशन किया कि अनइक्वल मेंबरशिप within the party based on, that means gender bias यहां भी है। So the main challenges faced by the political parties, simply हम याद रखेंगे, बहुत इजी है। पहला चैलेंज है कि डायनास्टिक सक्सेशन है, जिससे एक प्रॉब्लम होती है कि अगर डायनास्टिक सक्सेशन होती है, कोई एबल मिनिस्टर जो इस लीडर के खानदान से नहीं है, उसके को उतना चांस नहीं मिलता है कि वो पार्टी की मेन सीट संभाले। ये एक रीजन है, ये एक चैलेंज है। दूसरा है लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी से मुराद है कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टी जो पावर है दैट इज रेस्ट्स विद इन द हैंड्स ऑफ ओनली वन पीपल और ए ग्रुप ऑफ पीपल। इससे भी चांसेस होते हैं कि जो बाकी लीडर्स और ये डिसीजन मेकर्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। एक और चैलेंज है मनी एंड मसल पावर। इलेक्शन में वही ज्यादा जीतते हैं जिसके पास ये दोनों है, मनी भी एंड मसल पावर भी।
और नेक्स्ट है अनइक्वल मेंबरशिप ऑफ men and women within the political party. This is one more challenge that is faced by the political parties. तो अगर challenges है, next हम फिर देख लेंगे कि reforms, what should be the reforms in the political system of India. ये this question has been asked, हमारी बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि political, what should be the reforms to strengthen the political parties in India. आपको खुद सजेस्ट करने हैं, स्टूडेंट्स को खुद सजेस्ट करने हैं what reforms they would suggest, what reforms they would suggest for strengthening of political parties. पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या क्या सजेस्ट कर लेंगे. देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ सजेशंस, 2-3 सजेशंस यहां से दूंगा और जरूरी नहीं है कि वो सजेशन 100% एप्लीकेबल हो. यू कैन मॉडिफाई दो सजेशंस या आप अपने साइड से सजेशंस भी दे सकते हो. तो सम ऑफ द सजेशंस आई वुड पुट फॉरवर्ड. एक सजेशन मैं दे सकता हूं कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टी वुमेन के लिए एक रिजर्वेशन रखी जाए. तो अगर ज्यादा नहीं, कम से कम एट लीस्ट आई वुड सजेस्ट कि 1/3 रिजर्वेशन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी फॉर वुमेन. यानी अगर पॉलिटिकल पार्टी के 60 मेंबर्स इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कम से कम 20 मेंबर्स वुमेन होने चाहिए. एट लीस्ट 1/3 representation or reservation to women within the political party. This is one of the suggestion from my side. आप इसको increase या decrease भी कर सकते हो if you agree with it. और one more suggestion जो हमने पहले ही बोली कि पहला चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है कि विद इन द पार्टी वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स है. तो हम यहां सजेस्ट कर सकते हैं कि जो विद इन द पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर हो. देयर शुड बी अ प्रोसीजर विद इन द पॉलिटिकल पार्टी टू सॉल्व द इंटरनल डिस्प्यूट्स. ये एक प्रोसीजर होना चाहिए. थर्ड, एक और चीज है कि हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जब इलेक्शन हो, एक गरीब आदमी इलेक्शन के लायक है, वो एक अच्छा रूलर बन सकता है, बट ही इज अनेबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. सो वी कैन से दैट इलेक्शन शुड बी फंडेड. इलेक्शन को फंड किया जाए बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन शुड बी फंडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट नॉट इन कैश. It should be funded in kind, not in cash. So this is one more suggestion for reforming the political parties in India. और एक सजेशन मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं कि वो लीडर्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, उन लीडर्स को इलेक्शन में ना ही लाया जाए तो बेहतर है. दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट प्रमोट दोज politicians to contest elections who have criminal records. तो हम क्या कर सकते हैं? Those who have criminal records, they should not be given mandate by the political party. Political party criminal record वाले को mandate ही ना दे, उसको इलेक्शन में वो लाए ही ना. इवन हम आप यहां, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप क्या रिफॉर्म चाहते हो, वी वुड सजेस्ट, एक और चीज हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में आए, एटलीस्ट उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पॉल साइंस, उसको पॉलिटी के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए. एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी देयर. एलिजिबिलिटी, इलेक्शन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी जाए एक कैंडिडेट के लिए कि कब वो किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ के बाद वो इलेक्शन में आ सकता है.
So these are where some of the important topics meant for the students of class 10th. टाइम मिला तो फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एंड तक ले जाने के लिए. थैंक यू.